So 12th January 2025, everyone knows the date, everyone knows the drill, everyone knows everything. सबको पता होता है कहाँ से पढ़ने हैं, क्या पढ़ने हैं, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, सब कुछ तो पता होता है. Still you clicked on this video. That states that you guys are overwhelmed, which is pretty natural because last 1.5 month and you guys know it inside you that अगर यहाँ पे गड़बड़ हो गई तो that's why you clicked on this video. Nervousness, overwhelmed, बहुत सारे सवाल है दिमाग में. सबसे बड़ा सवाल जितने DM मुझे मिलते हैं, most of the people in my DM have two important questions, and first question being, if I start studying from today till the day before exam, will I pass? बस आप बता दो पास होना संभव है या नहीं. इज़ इट पॉसिबल और नॉट, मतलब मैं मेहनत करूँ या फिर मेहनत करूँ भी ना. उनको ये होता है कि बस बता दो, अगर पॉसिबल है ही नहीं तो क्यों इतनी मेहनत करना, और अगर पॉसिबल है तो जी जान लगा देंगे. ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, विल आई पास इफ आई स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम टुडे. देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज, पढ़ तो बहुत रहा हूँ, पढ़ तो बहुत रही हूँ, बट कुछ याद ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता. क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आई फील दैट आई नो दिस टॉपिक. इनफैक्ट वो पन्ना भी सामने आता है, आई कैन सी द पेज, आई कैन सी माई हैंडराइटिंग, एवरीथिंग इज ब्लर, और आई just don't understand. I can't make sense. I've been getting this question a lot from people. I will be answering a lot of stuff in this video. I told you beforehand. 2x पे देख लो चाहे, ठीक है. अगर you guys are strained on time, आपका ब्रेक टाइम चल रहा है, उसमें आप ये वीडियो देख रहे हो तो 2x पे देख लो, ठीक है. नहीं तो 1.5 because I speak a lot and I speak faster also, so 1.5 will be better. Yeah. First thing that you should be doing is checking your emails. Why? Because NMC से कभी भी कुछ भी आ सकता है. So that's why make it a habit to check your emails regularly and also check the spam folder कि NMC से कुछ है या नहीं, ठीक है. उसके बाद second thing that you need to be doing is no social media. Right now you are watching me on social media. That means you guys are active users. So YouTube के अगर आप हो तो समझ में आता है, because lot of content you guys are consuming from YouTube that is beneficial to you. PSM, your microbiology, pathology videos, medicine videos, lot of stuff on YouTube. So I understand, but no social media मतलब no Instagram. समझ में आया? लास्ट 1.5 मंथ अगर अब तक इंस्टाग्राम आपने अनइंस्टॉल नहीं किया तो आप क्या कर रहे हो? You guys deserve to pass. If you are just scrolling, if you are into that dopamine लेने वाला state, I don't think so you will pass. Just uninstall your Instagram, ठीक है, because that is a rabbit hole. Really that is a rabbit hole. उसमें नहीं जाना है, uninstall कर देना है अगर अब तक नहीं किया तो. That is one thing I highly am telling you कि ये तो कर ही लो. Instagram uninstall करना ही है. उसके बाद YouTube के शॉर्ट्स नहीं देखने हैं, बिकॉज दैट अगेन इज लाइक रील. आपका ऐसा उंगली भी इट जस्ट स्क्रॉल्स एंड स्क्रॉल्स एंड स्क्रॉल्स एंड या. सो YouTube के शॉर्ट्स नहीं देखना है. Instagram आपने अनइंस्टॉल कर दिया ऑलरेडी. देन व्हाट यू विल बी यूजिंग YouTube फॉर योर लास्ट 1.5 month जितना बचा है, ओनली स्टडी. You can't watch any other video that is not related to your study, ठीक है. फिर उसके बाद आपको कौन से सब्जेक्ट करने चाहिए. अगर आपने अभी तक के कुछ भी नहीं किया है, like you have not done any bloody thing, you are like a blank slate, so I applaud you. क्या करेज है आप लोगों में, मतलब अभी तक नहीं किया एंड वाओ क्या पास हो सकते हो, जी जान लगा दो तो आप हो सकते हो. Nothing is impossible, okay? If you start studying from this very moment, you are gonna pass, trust me. But you should know how to study, what to study, you should have that. थोड़ा smart work करो. अगर आप blank slate हो तो उन लोगों को सबसे पहले I need to tell them what they need to do. Start with major subjects. अभी आपके पास टाइम नहीं है कि मेन वीडियोस का तो नाम भी नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में. PSM,
PSM, ऑब्स गायनी, सर्जरी, ये 3 सब्जेक्ट के रैपिड रिवीजन देखो। और ऐसे है नहीं कि आज 5 घंटे करता हूँ, कल 6 घंटे करता हूँ। हाउ मेनी आवर्स यू शुड बी स्टडिंग इन अ डे? आई एम नॉट गोना टेल यू द आवर्स. You are gonna freshen up, you're gonna eat your food, have 6 hours of sleep. बाकी का जितना टाइम है you're gonna train, you're gonna study, and that's it. That can be 12 hours, 13 hours, 15 hours, I don't know. But you eat, you sleep, बचा कुचा जितना टाइम है you study. ठीक है, डन डील, अंडरस्टूड? ठीक है। ब्लैंक स्लेट वाले लोग PSM, ऑब्स गायनी, सर्जरी, इनके रैपिड रिवीजन सबसे पहले देख लो, समझ लो, नोट्स बना लो। ठीक है, 10 घंटे 20 घंटे के होंगे सब कुछ मिला जुला के। पर बता रही हूँ, ऐसे नहीं होता अभी कुछ पता ही नहीं तो अरे तीनों का मिला के 20 घंटे नहीं। ठीक है, 20 घंटे पर हो सकता है। जो भी प्लेटफॉर्म है उससे कर लो, वॉट एवर इज अवेलेबल, वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू हैव। ये नहीं कि ओ यही वाला प्लेटफॉर्म चाहिए, यही वाले सर चाहिए, ये सब मत करो। अभी जो भी अवेलेबल है, जहाँ से भी अवेलेबल है, रैपिड रिविजन कर लो इन सब्जेक्ट्स के। उसके बाद PYQs कर लो इन सब्जेक्ट्स के। पता तो होता है लेकिन सुन लो, कर लो, आँख बंद करके फॉलो कर लो अपने सीनियर को। ठीक है, these 3 subjects. Why did I not say medicine? You know why? Because medicine इतना ज़्यादा बड़ा है और अगर आप blank slate हो तो you guys will be overwhelmed. Your huge chunk of medicine will be covered in pathology, pharmacology, and बाकी सारे सब्जेक्ट अगर आपके तगड़े हैं तो इंटीग्रेशन के थ्रू आपका मेडिसिन के क्वेश्चन सही आएंगे। So that's why इफ़ यू वॉन्ट टू जस्ट डू द सिस्टम अप्रोच रखो मेडिसिन में। इफ़ यू वॉन्ट टू, आपके पास पहली बात तो टाइम है ही नहीं, जो भी ब्लैंक स्लेट वाले लोग हैं। ठीक है, तो जितना मैं बोल रही हूँ उतना करो। अब तक क्या हुआ, PSM, ऑब्स, आई नो आई एम टेकिंग टाइम, आई एम रिपीटिंग स्टफ बिकॉज आई फील दैट इज़ नेसेसरी, आपके दिमाग में घुसना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादा बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अब तक पढ़ाई नहीं की तो आपको तो बहुत ज़्यादा रिपीटेशन लगेगी। जिन लोगों ने पढ़ाई की है वगैरह, दिस स्लॉट इज़ नॉट फॉर यू, देन जस्ट स्किप करके अपने वाले स्लॉट पे आ जाओ। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया उनके ये 3 मैंने बता दिए, PSM, ऑब्स गायनी एंड सर्जरी, एंड देन इसके बाद ऑफ्था ENT, ये 5 सब्जेक्ट करने हैं। देन ऑफ्था ENT के बाद यू नीड टू डू योर पैथो, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। तो इसी सीक्वेंस में जाओ, हाईली रिकमेंड, इसी सीक्वेंस में जाओ। सीक्वेंस बेसिकली क्या है, मेजर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट सब्जेक्ट है ना उसका मेजर चंक किस में से आता है, क्लिनिकल वाले ब्रांचेस से। अपना ENT हो गया, ऑफ्था हो गया, क्लिनिकल ब्रांचेस है, तो इसमें से ज़्यादा सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वैसे करो। पीडियाट्रिक्स है ना, वैसे करो, मेजर, इंटरमीडिएट एंड देन स्मॉल सब्जेक्ट। राइट नाउ इफ यू डू स्मॉल सब्जेक्ट्स दैट इज अ ब्लंडर। वाई? सूडो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि अरे यार आज ये पढ़ा, कल वो पढ़ा, मेरे 5 सब्जेक्ट हो गए, मेरे 6 सब्जेक्ट। फालतू का कॉन्फिडेंस तो आपका चढ़ेगा और रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा। अभी स्मॉल सब्जेक्ट मत करो, वो लास्ट के 5 दिन में भी आप कर सकते हो। अभी मेजर सब्जेक्ट करने का टाइम है, वो करो। देन उसके बाद इंटरमीडिएट सब्जेक्ट करो, उसमें के भी क्लिनिकल सबसे पहले निपटाओ, एंड देन बचे कुचे अपना जो एनाटॉमी है, बायोकेमिस्ट्री, ये सारा लास्ट में करो, चलेगा। ठीक है, पहले क्लिनिकल वाला निपटा लो। ठीक है, हो गया, ब्लैंक स्लेट वालों का हो गया। ये आप लोगों को करना है कब तक, आई थिंक मिड दिसंबर तक ये सारे 19 सब्जेक्ट का आपका होना चाहिए। 19 सब्जेक्ट में से आई एम सेइंग मेडिसिन आपका कवर अप हो ही जाएगा, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स आप अच्छे से कर रहे हो तो। कैन आई पास द होल एग्जाम बाय जस्ट डूइंग रैपिड रिविजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स? यस यू कैन। वाई? ये मैं इतना ऐसे यस कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं पास हुई ना। आई ओनली डिड 1 सब्जेक्ट बाय मेन वीडियोज एंड दैट वाज ऑब्स गायनी। उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट मैंने किए सारे रैपिड रिविजन से किए एंड आई पास, सो यू कैन ऑल्सो पास। लेकिन इसके अलावा व्हाट आई डिड वाज
I studied retrospectively a lot, so I gave lot of GTs के through I used to पूरा 19 सब्जेक्ट का रिविजन तो हो जाता था GTs से. That was my approach. GT analysis was like topmost priority for me. Retrospective. एग्ज़ाम में आपको थेरी नहीं पूछे जाएगी, एग्ज़ाम आपको MCQ का देना है, कर आप थेरी रहे हो. अगर अब तक आपने GT नहीं दी, पढ़ाई नहीं स्टार्ट की, GT नहीं दी, गाली में देती नहीं हूँ या, बट कॉल योर सेल्फ स्टूपिड, इडियट, पंच योर सेल्फ, यू डिज़र्व इट. अब तक GT नहीं दी, GT देना स्टार्ट कर दो. पर 7 days, ऑन 7th day गिव GT. पूरा दिन GT का रखो, एनालिसिस करो. ओके, एंड नाउ आई विल बी टॉकिंग फॉर पीपल हु आर रिपीटर्स. दिस योर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम, डजेंट मैटर. ठीक है. फियर फैक्टर मैटर्स फॉर यू गाइज. आई विल बी सेइंग जिनको भी 145 मिले हैं, 140 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है, many people तो are stuck in 149, 148. I understand your mental state at this moment. Trust me, I cannot even phantom, मतलब पूरा नहीं समझेगा, but I can put myself in your shoes and I don't want to put myself in your shoes because tremendous mental pressure मुझे feel होता है just by putting myself in the situation कि यार ये लोग मतलब कैसा feel होता होगा. You guys might be so mentally taken aback by the setback because in India if you fail you are a failure. मतलब एग्ज़ाम नहीं पास हुआ, मैंने इतना पैसा लगाया तुम पे, रिलेटिव्स, पेरेंट्स का प्रेशर. आई अंडरस्टैंड, आई कैनॉट इवन फैंटम कि आप लोगों की सिचुएशन क्या है. सो फॉर यू गाइज बेस्ट थिंग दैट आई विल बी सेइंग राइट नाउ इज़ 140 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है, 140 135 के ऊपर अगर है, दैट मीन्स यू गाइज हैव नाइस बेस. व्हाट यू गाइज नीड टू डू? PYQ, GT, MCQ, क्वेश्चन बैंक, दैट्स इट. थेरी पे मत जाओ ही मत. you know everything. ठीक है. राइट नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? MCQ. एग्ज़ाम MCQ का है, थेरी का नहीं. मैनी पीपल थिंक थेरी ये कर लूँगा, पूरा कर लूँगा, हर सिस्टम कर लूँगा, सब कुछ होगा तभी मैं दूंगा. पूरा सब्जेक्ट पहले करूँगा, उसके बाद क्वेश्चन बैंक और MCQ. अप्रोच ही गलत है यार. हैंड इन हैंड MCQ का तवज्जो हमेशा ऊपर है थेरी से. दैट इज़ व्हाट आई फील, दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, बिकॉज I did not study much, but what I did was my approach was really good. Retrospective studying, एग्ज़ाम का पैटर्न जो है उसको फॉलो किया, MCQ किए बहुत सारे, एनालिसिस किया कि ये MCQ कैसे करना चाहिए, how to solve MCQ. That also technique is there, no, that you develop. इंडिविजुअल टेक्निक हर एक का अलग अलग है, बट mine was reading last 2 lines, देन उसके बाद रीडिंग फर्स्ट लाइन, देन बीच का. सो सीक्वेंस वॉज लाइक लास्ट, फर्स्ट, बीच का. फॉर मी, फॉर यू इट माइट बी डिफरेंट. एंड आफ्टर यू सॉल्व लॉट ऑफ MCQs, योर आईज आर ट्रेन्ड टू कैप्चर, सिलेक्टिवली कैप्चर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स. जो बज़ वर्ड्स होता है ना, वो आँख एकदम ऐसे पकड़ लेती है. कब? प्रैक्टिस से होता है भाई साहब, ऐसे नहीं होता. इफ़ यू थिंक कि एग्ज़ाम के दिन पहली बार, अब थेरी तो पूरा हो चुका है, एग्ज़ाम के टाइम में सबसे पहली बार अगर आप MCQ दे रहे हो तो वर्स्ट आइडिया, मोस्ट स्टूपिडेस्ट आइडिया एवर. एग्ज़ाम के पहले मिनिमम कह रही हूँ, मिनिमम 5 GT तो दे दो यार. 5, मैंने तो 20 दिए थे, लेकिन आप 5 तो दे दो. अगर अभी से स्टार्ट करोगे तो 5. एंड ऐसे नहीं कि बस देना है, सोफे पे लेट के दे रहे हो. गिव इट लाइक एक्चुअल एग्ज़ाम. मैंने तो मेरे टैब पे दिया था, बट इफ़ यू आर रिपीटर आई हाईली रिकमेंड. लैपटॉप तो होगा आपके पास, नहीं है तो बाजू वाले के पास होगा, जो भी, किसी से भी हेल्प मांग लो. आपका PC या फिर लैपटॉप, उस पर गो टू द साइट. फ्री GTs अवेलेबल है बहुत सारे.
माउस होना चाहिए, मतलब लाइक यू नो इट शुड मिमिक द एग्ज़ाम वाला, यू नो, क्योंकि क्या होता है नर्वस सिस्टम ओवर पावर कर जाता है एग्ज़ाम के टाइम में, यू नो, हाथ भी ऐसे कांपने लगेंगे, स्वेटिंग होगा, यूरिनेशन के लिए भागना पड़ेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम ओवरड्राइव हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम में। आई अंडरस्टैंड, प्रीटी नॉर्मल, मेरे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है, ठीक है, कोई इतना चिल नहीं होता, बिकॉज सो मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू गाइस, वी नीड टू पास, नहीं तो अस्तित्व ही क्या है, नहीं तो वी आर जस्ट 12th पास पीपल, राइट? So much is at stake. Right now is the time, take things in your hand and do it. You can do it. PC, लैपटॉप उस पर करो, यू नो, माउस रहेगा, क्वेश्चन देखोगे, एकदम इस पे बैठना है, चेयर पे बैठना है, टेबल पे बैठना है, दैट इज़ योर रियल एग्ज़ाम। ऐसे सोच के दो, पहले बार डर लगेगा, दूसरे बार डर लगेगा, लेकिन आपका डर ख़त्म हो जाएगा एग्ज़ाम के टाइम में, इट विल बी रियली नॉर्मल टू यू, ठीक है? सो मेंटेन दैट। फॉर रिपीटर्स माई एडवाइस, PC लैपटॉप पे GTs दो, MCQ दो, PYQ करो। अभी बाकी का टाइम ही नहीं है थेरी का करने का, रैपिड रिविजन देखने का। यू गाइज डोंट लाइक नीड दैट, बिकॉज लैक क्या कर रहा है वो देखो, लैक MCQ प्रैक्टिस ये सब भी कर रहा होगा मोस्ट, मतलब 95% केसेस में आई कैन से इफ योर स्कोर इज यू नो अबाउ 135, what you're lacking is you're lacking skill to, you know, selectively take buzzword, to orient yourself, analyze the question, ऑप्शन कैसे चूज करना, यही सब बेसिकली MCQ से रिलेटेड स्टफ ही आपका प्रॉब्लमेटिक है, तो वही करो, उसी पे वर्क करो, हो जाएगा, निकल जाएगा। लाइक आई सेड, I cannot even imagine that how much amount of stress you guys are in right now, self-doubt, suicidal thoughts, whatever it is, suck it up, work it up, you can do it। 5 साल 6 साल मेहनत नहीं की, या फिर की भी है फिर भी फेल हो रहे हो, पूरा मेहनत किया। ऐसे भी लोग होते हैं कि सब मेहनत की, सारे सब्जेक्ट कर लिए, MCQ कर लिए, GT दे दी, सब कुछ हो गया, लेकिन स्टिल दे आर फेलिंग। सो फॉर देम आई थिंक ओनली फॉल्ट इज़ योर फियर एंड योर एंजाइटी। मतलब आपने एग्ज़ाम को इतना ऊपर पेडिस्टल पे बिठा के रखा है कि यू गाइस आर नथिंग एंड एवरीथिंग इज एग्जाम, एंड यू गाइस जस्ट, मतलब ब्लैंक स्लेट होता होगा, you guys might just be so crippled by fear that you don't understand कि हो क्या रहा है उनके साथ। so sort of like flight और fight वाला जो response है, उसमें flight भी नहीं हो रहा, fight भी नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ freeze हो रहा है आप लोगों का। that is the only thing I can say। नहीं तो इसके अलावा फिर और क्या होगा, अगर सब कुछ पढ़ा है वगैरह, so work on your fear factor। बहुत सारे GTs दो, mimic the environment of exam, silence, टेबल पे बैठो, चेयर पे बैठो, एग्ज़ाम दो जैसे कि रियल एग्ज़ाम है, एंड वर्क ऑन योर फियर, ठीक है? और जिन लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा, तो अभी तो टाइम है, अभी तो 1.5 महीना बचा है, अब तो पढ़ लो, अब तो जी जान सब कुछ लगा दो एंड स्टडी, ठीक है? तो फैक्टर्स क्या क्या कवर किए, जो लोग ब्लैंक स्लेट है उनको मेजर सब्जेक्ट्स करने हैं, उसके बाद क्लिनिकल वाले इंटरमीडिएट सब्जेक्ट्स करने हैं, फिर बाकी बचा कुचा जो भी है वो करने हैं। 7 दिन एवरी 7th डे GT देना है, GT वाले दिन सिर्फ GT देना है एंड एनालिसिस करना है, एंड देन सो जाना है, ठीक है? फिर उसके अलावा आई सेड नो सोशल मीडिया, मतलब नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, मतलब नो इंस्टाग्राम, ठीक है? इंस्टाग्राम तो होना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, अगर आपको पास होना है तो। दैट्स रियली व्हाट आई यू नो बिलीव इन। इंस्टाग्राम, नो इंस्टाग्राम, मतलब ऐसे मौत नहीं आ जाएगी कि अरे यार ये रील नहीं देखा, वो रील नहीं देखा, मतलब मेरा दोस्त बोलेगा यार दोस्ती भूल गया, बड़े लोग बड़ी बातें, अनइंस्टॉल। यूट्यूब पे शॉर्ट्स नहीं देखने के हैं, ठीक है? शॉर्ट्स पे जाना ही नहीं है, नो नो मतलब नो। whatever you're going to use YouTube for, that should be only and only for your exam। exam related videos देखो, exam related interviews सुनो, exam related you know subjects करो, that's it। good। मुझे तो 2 ही सोशल मीडिया पता है, इंस्टाग्राम और ये, बाकी अगर आप कहीं और टाइम पास कर रहे हो, व्हाट्सएप वगैरह, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वगैरह, तो क्या कहूँ अब मैं, तो कुछ नहीं कहती हूँ, एंड बंद कर दो वो सब,
बिकॉज यू गाइज नीड टू पास, नहीं तो छोड़ के चले जाना है. ओके, ठीक है. What else? How many GTs you should be giving before exam? What I feel is, मैंने तो 20 दिए थे, लेकिन आप लोग अगर स्टार्ट ही नहीं किया है तो मिनिमम 5. You guys need to give 5 GTs. Recent updates. You know, many recent updates come in pharmacology, gynecology. ठीक है, तो मिनिमम लाइक फार्मा के एंड गायनिक ऑब्स गायनी के, ऑल्सो PSM, फार्मा ऑब्स गायनी PSM, इनके जो भी अपडेट है ना, रीसेंट अपडेट्स, उस पर क्वेश्चन आते हैं. मतलब क्वेश्चन बेसिकली कुछ भी होगा, लेकिन लास्ट अपडेट एंड अभी वाला अपडेट दोनों रहेंगे. सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, लाइक पार्टोग्राम का वो चेंज हो गया था, यू नो, सो इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आंसर तो गलत होगा. सो वो वाले वीडियोस देख लो, रिसेंट अपडेट वाले, फॉर PSM, ऑब्स गायनी एंड फार्मा. ठीक है, डन डील. अगर आपका आपने कुछ भी नहीं किया है, वो ब्लैंक स्लेट वाले लोग जिनको पहले मैंने कवर किया था, सिर्फ रैपिड रिविजन करना है भाई लोग, बाकी कहीं पे जाओ मत कि नहीं ये वाले सिस्टम का तो मेन वीडियो करूँगा. ये रैपिड रिविजन एंड जितना कुछ भी नॉलेज उस सब्जेक्ट का लेना है वो MCQ सॉल्व करके लो. Now at last, good people, good students जो 5th year से पढ़ रहे हैं, 6th year से पढ़ रहे हैं, you know, they are following certain strategy, they are following their own timetable, they are sticking to their routine, but you guys are still stressed कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा. तो हो पाएगा, ज़रूर होगा. अगर तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? ब्लैंक स्लेट वालों को अगर मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आज से पढ़े, एंड तक के पढ़े, अगर उनसे हो सकता है तो फिर आप लोगों से क्यों नहीं होगा भाई? आप लोग तो डिज़र्व ही करते हो. अगर इतना देर से आप लोग पढ़ रहे हो, घिस रहे हो, तो अभी एट दिस मोमेंट यू वांट टू गिव अप? वाह भाई, ये तो अलग नशे कर रहे हो आप लोग. नहीं, अभी ये मोमेंट है, डोंट गिव अप. ओके, यू नीड टू स्टिक टू योर रूटीन. जो फॉलो करते आ रहे हो करते रहो. एंड व्हाट शुड बी योर रूटीन? प्रिटी क्लियर यार. कोई टाइम टेबल बनाओ ही मत. खाना, पानी पीना, फ्रेशन अप होना एंड देन सोना. सो बेसिकली खाना एंड सोना. इसके अलावा जो भी टाइम बच रहा है, पढ़ाई. पढ़ाई के बारे में बातें, पढ़ाई के बारे में वीडियोस, पढ़ाई बस. एंड आई ऑल्सो वुड लाइक टू से दैट एट दिस मोमेंट जिनसे आप बात करते हो, दैट मैटर्स अ लॉट. आई यूज्ड टू टॉक विद माई फ्रेंड्स, माई वेरी क्लोज फ्रेंड्स, and what I used to talk about was subjects. We used to talk about topics about MCQ कि अरे यार ये MCQ इतना डिफ़िकल्ट लगा, बट इसका तो ये होना चाहिए, बट ये वाला है, तुझे समझा कैसे करना है वगैरह. सो डिस्कशन रिगार्डिंग स्टडी विथ फ्रेंड्स, दैट आई थिंक was so, it turned out to be so beneficial for me, क्योंकि I think around 10 questions came, approximately 10 questions came. मतलब 3 दिन पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसी में से क्वेश्चंस आए. सो मतलब दैट वाज वेरी बेनिफिशियल एंड आई मिस दोज सेशंस नाउ. मतलब अभी तो मैं बोलती हूँ कि यार फिर से करते हैं, बट नहीं हो पाता टाइम मैनेज इतना. बट दैट वाज द बेस्ट थिंग एवर. सो फ्रेंड्स कैन मेक एंड ब्रेक. बिकॉज अगर आपका दोस्त अरे यार मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे लगता है नेक्स्ट 6 महीने की तैयारी अभी से स्टार्ट कर देता हूँ. अगर आपके दिमाग में है ना कि ये तो मैं एम ही दे रहा हूँ, नेक्स्ट 6 महीने में अच्छे से, अगर आपके दिमाग में बैकअप प्लान है, दैट मीन्स यू आर नॉट पुटिंग योर 100%. इफ यू आर नॉट पुटिंग योर 100%, डू यू डिजर्व टू पास? You deserve to pass, or the one who's putting 100% deserves to pass. So in short, there is nothing like bad people, good people, but everything depends on perception. So some people have really negative perception, some people have positive perception. Right now what you need is, you need to stick with people who have positive perception. It is very difficult to be positive, I understand, but you need to be. You need to be positive. मतलब मैं नहीं तो और कौन पास होगा? Pseudo confidence, fake confidence, I know, but you should have that. So you can do it. टाइम पास नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है, ठीक है? दूसरों को मोटिवेट करो, दूसरों को मोटिवेट करो कि भाई होगा, वी कैन डू इट. बिकॉज व्हेन यू मोटिवेट अदर्स, यू मोटिवेट योर सेल्फ. बिकॉज यू ऑलरेडी थिंक
कि अरे ये मैं हूँ इसलिए तो मैं कह रहा हूँ. योर माइंड थिंक्स दैट. Okay, that is sort of psychological, but if you motivate others, you yourself will be motivated, and chances are you will be better in your own life. I guess that's it. I think I've answered to all the questions. Can you pass if you start studying today? Yes, you can pass, but you need to give your 1000%. ठीक है? If you have backup plan in your mind, that means you're not gonna, मतलब you're not giving your 100%. तो बैकअप प्लान है ही नहीं कुछ. पास होना है, इसी में होना है, बस होना है तो होना है. ठीक है, हो सकता है. रैपिड रिविजन कर लो. सभी को रैपिड रिविजन ही करना है अभी के टाइम पे, आई वुड से. ठीक है. आई डोंट रिमेंबर एनीथिंग. हैपेंस विद ऑल ऑफ अस. मेरे साथ भी हुआ था. मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा था. एक टाइम पे ऐसा लगता था पढ़ भी क्यों रही हूँ, कुछ याद तो रहता नहीं है. But keep on doing it. That is just a phase and it will pass and you are gonna pass. Solve GTs, do lot of MCQs. मतलब per day minimum 50 तो होने चाहिए. इससे कम तो वैसे मैं 100 कहने वाली थी, but minimum 50 very doable. अगर ये नहीं कर रहे हो तो यार I don't want to say anything. Minimum 50 MCQs per day. Yeah. How many GTs should you give? Ideally I would say 10, लेकिन minimum 5 तो आपके होने ही चाहिए. ठीक है. पर 7th डे पे GT दे दो. एनालिसिस करो. एनालिसिस कैसे करना है GT का? पूरे 300 क्वेश्चन के एनालिसिस करने हैं. मतलब ये वाला तो सही है, ये वाला तो मुझे पता है, लेकिन पढ़ो उसका एक्सप्लेनेशन. वाई? क्योंकि शायद तुक्का लगा होगा आपका. You know, by fluke that might have come right and you're just skipping the question and just going to the questions that are wrong. So many सारे 300 क्वेश्चन करो, बस sorted, done deal. सबके एक्सप्लेनेशन पढ़ो. ठीक है. अगर you know right है, you know everything is pretty obvious, but you're reading, बेनिफिट ही है ना. कुछ ना कुछ डेफिनेटली एक आधा पॉइंट ऐसे होगा जो ये तो मैं भूल गई थी, ऐसे निकलेगा. ठीक है. तो सारे 300 के एक्सप्लेनेशन पढ़ो, समझो. एंड इफ देयर इज सम क्वेश्चन दैट यू आर लाइक यार इसका तो ये आंसर होना चाहिए था, ये मतलब लाइक यू आर प्रीटी कंफ्यूज, समझ भी नहीं रहा एक्सप्लेनेशन, नथिंग इज मेकिंग, स्किप द क्वेश्चन. डन डील. कैन यू पास बाई जस्ट गिविंग RR? हाँ बताया मैंने. येस यू कैन डेफिनेटली पास. हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्टडी? आई सेड खाना पीना सोना, उसके अलावा जितने भी आवर्स है पढ़ाई करो. आई थिंक आई मोटिवेटेड यू गाइज इनफ. एंड it's not about motivation right now. What is important, it's about discipline. So what my video gave you, I think that's clarity, reality. And if you feel like this added some sort of information and some sort of benefit in your life, subscribe to the channel because I need money and interns don't get paid much. Okay, bye. लेकिन internship में आने तक का जो सफ़र है that is amazing. So you can do it and आप नहीं तो और कौन. करो यार, करो. अभी टाइम है, दस्तूर है. अभी नहीं तो कब करोगे? इसे जान झोंक दो. Done deal. Bye.